Good morning and welcome to this teleconferencing of BSc Honours in Ophthalmic Techniques and Optometry. Friends, we have been having teleconferencing for last 3-4 days, and we have covered the basic human sciences, then we have covered the basic ocular sciences, and yesterday we covered some of the areas in basics of optometry. And today we will start from where we left yesterday. We will be talking about some of the properties of light, how light behaves, what are the various laws of reflection, diffraction, then what are the basics of optometric. That all we will be discussing in these 3 sessions. Again, my request to all of you will be that in case you have any question, please send your question maybe towards the last 5 minutes of the session. This is a 45-minute session, so 35-40 minutes let Dr. Monica speak give the inputs, and then if there are certain queries, but if you feel if there is some urgency that if you need clarification on the spot, then you can definitely intervene. Because this basically the purpose of this teleconferencing is to have interaction between the students and the teachers. It's not that we have to give a lecture and you have to follow that. But if you definitely feel that there is a requirement that something need to be clarified, you can immediately ask the question. And again, one more request to you, all of you, will be that whenever you are asking questions, you please lower down the volume of your TV. What we have been seeing for last 3 days, you are putting your TV volume at the high pitch and then you are asking the question, because you are not asking the question through TV screen, you are asking through the phone. So phone is already in order. If you increase the volume of TV, then there is an echo and then we are not able to listen your question properly, and you are also not able to listen our voice properly. So with these observations, I again welcome to you to this teleconferencing session, and I also welcome Dr. Monica Chaudhary. I think you are familiar with her. She is a senior faculty in optometry in All India Institute of Medical Sciences, and yesterday also she has taken session in the optometry. So today we will continue from there only. Madam, I think we will start from the basics principles of optometry, and then we'll go on to the properties of light, laws of reflection, refraction. Very right. Very So right. maybe we can start with the principle of ophthalmic. Very good morning to everybody. Today is the lecture which will consider the very basics which you might have studied in your 10th, 11th and 12th standard. As an optometrist, you don't even need to continue with your biology, you need to be very thorough with your physics, because there is optics behind the eye which you have to be perfect with. So what we are going to do is just revise the laws, whatever you might have missed out in your classrooms, because some of you may have not gone through it. Please be thorough with the topics which I am just giving in the overview, and then we will go on to the next part, which is how the eye behaves as an optical system. So let's revise our physics on the first part. Let's say, what is vision? How do we see? Vision is actually constituted of 4 main groups. That is the light source, which you can say the sun, the tube light. Unless there is a light source, you cannot see an object. The second is a secondary light source, which is the reflected light. Maybe if there is something from the sunlight which is reflected, you can see through it. The third is the eye, which is the receiver of this, where you have the cornea, the lens, the rods and cones and the optic nerve. And the decoder is actually the brain. So brain is analyzing and identifying and perceiving this kind of thing. So the vision is a complex system which consists of right from the light source to the eye, which is actually a receiver, and then it is passed on to the brain, which is analyzing it. It's not only physical mechanism, it is involving the physical, physiological and the nervous part. Very right, very right. Like so vision is, it might sound very easy to you ki you are seeing something and it's so easy that you can identify something, but there is too much of complex system behind. People compare eye with the camera, but camera is just only the physical image.
But Right. here the transmission of image to the brain, how brain perceives the image, that is also very important. गॉड की क्रिएशन को शायद हम चेंज नहीं We कर can't. सकते. दो द कैमरा इज अ पार्ट But वेयर we वी can विल compare. कोरिलेट. Correlate. Correlate That is is just right. for students level, so we can understand what is retina and Well, cornea that- and what is a lens. Right. So let us start with what is light actually. You have to be thorough with your physics, as I said earlier. So let us say what is light. Light is actually electromagnetic radiation which has both wavefront and photons. Okay, so there were some theories जो कि wave motion पे based थी, कुछ theories थी जो photon का particle nature light को describe करती हैं. Second thing, if we will go on to the electromagnetic spectrum which is the whole light area that you are seeing or not seeing. The visible spectrum is something like 390 to 760, or you can go up to 800 nanometers. To the left hand side is the whole UV radiation, X-rays, cosmic rays, where the nanometers keep on reducing. And then to the right side we have a whole range of infrared, microwaves, TV waves, radio waves and electric power waves. So you can see it's a small area what is called the visible spectrum. What does visible spectrum mean? Visible spectrum means जो कि लाइट हमारी आंख पे पड़ती है और रेटिना जिसको परसीव करता है. अल्ट्रावायलेट रेडिएशन Otherwise it was a broad spectrum, but we can see only a limited portion of the ओनली अ लिमिटेड नैनोमीटर्स जो कि हमारी रेटिना पे पहुंचते हैं और जिसको हम परसीव कर सकते हैं. बियॉन्ड दैट वी हैव द यूवी रेडिएशन एंड द इंफ्रारेड रेडिएशन जिसको आईज परसीव नहीं करती हैं. यस, यूवी रेडिएशन बहुत हद तक आईज में एब्जॉर्ब हो जाती है थ्रू द लेंस, थ्रू द कॉर्निया, through the it doesn't actually reach the retina. अगर UV radiation retina को पहुंच जाती है तो आई में डैमेज हो जाएगा. दैट इज व्हाट इज ऑल्सो हैपनिंग जो कि ओजोन लेयर डिप्लीट करती है, विच यू विल अंडरस्टैंड एज यू ग्रो अप इन योर ऑप्टोमेट्री. सो यूवी इज समथिंग विच इज नॉट रीचिंग द आई. लेंस उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, कॉर्निया उसको आगे नहीं जाने देता. इंफ्रारेड रेज वी आर नॉट मच सेंसिटिव, ये ज्यादातर हीट प्रोड्यूस करती हैं. इफ वी गो इन टू द विजिबल स्पेक्ट्रम, द होल रेडियो वेव, माइक्रो, इंफ्रारेड, अल्ट्रा, एक्सरे एंड गामा, just see it is just a small portion of visible light that we are seeing. और इसमें आपको दूसरी चीज ये अंडरस्टैंड करनी है जो लॉन्ग वेवलेंथ है, which is the infrared wavelength. It has low frequency and low energy. Short wavelengths, high frequency and high energy, which is the X-rays or the which is the ultraviolet radiation. Now what happens if the light falls on any object? किसी पे भी ऑब्जेक्ट पे लाइट फॉल करने पे 5 बेसिक फिनोमिनाज होते हैं. वन इज ट्रांसमिशन, एब्जॉर्प्शन, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड डिफ्रैक्शन. So that means why are we going to talk of light on an object today? We start with this, but ultimately ये सब चीजें आँख में भी होंगी. Can you explain what is transmission of Yes, transmission? we'll go into it in detail कि what is each one of it. Now first let us say what is absorption of light. लाइट जब किसी भी ऑब्जेक्ट पे पड़ती है, उसकी वेवलेंथ जब उससे मैच करती है तो पार्टिकल्स मूव करते हैं और उसमें हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है जिससे वो लाइट एब्जॉर्ब हो जाती है. सो जो लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट में पास करी, some of it is always absorbed. So it can be a phenomena जहाँ ये सारे लेवल्स पे पार्टिसिपेट करता है, या कोई ऐसा ऑब्जेक्ट हो सकता है जिसमें टोटल एब्जॉर्प्शन भी हो सकती है. Second we go on to is reflection. Now we say some of the light is getting into the object which is getting absorbed. कुछ लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है. रिफ्लेक्शन के लॉज वगैरह हम आगे पढ़ेंगे. So some light is getting reflected which is passing on to the object. The third phenomena which happens when the light falls on the object is refraction. Refraction is bending of light. दोनों रिफ्रैक्टिव मीडियाज डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के हैं, इसको हम आगे अभी और डिस्कस करेंगे. इससे लाइट जो एक एंगल पे प्रोजेक्ट हो रही थी, एमिट आउट दूसरे एंगल पे होती है. दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. ये भी एक फिनोमिना है, जब ऑब्जेक्ट पे लाइट पड़ती है तो होता है. एंड द लास्ट वर दी डिस्पर्शन एंड ट्रांसमिशन. सो लाइट की ट्रांसमिशन में पार्टिसिपेशन रिफ्लेक्शन का भी है, एब्जॉर्प्शन का भी है. और इस तरह से आप अंडरस्टैंड करोगे कि लाइट सिंपली एक ऑब्जेक्ट पे पड़ी और उसके थ्रू पास कर गई. अगर ये टोटल हो, वैसे ये टोटल कभी नहीं होता है. इफ सपोज इट हैज बीन अ टोटल, देन द
that object is said to be transparent. There is no object which is 100% transparent. माने उसमें से लाइट जितनी पड़ी उतनी ही वापस ट्रांसमिट हो गई, ऐसा कोई ऑब्जेक्ट नहीं है. देयर इज सम फिनोमेना ऑफ एब्जॉर्प्शन, देयर इज सम फिनोमेना ऑफ रिफ्लेक्शन, देयर इज सम फिनोमेना ऑफ रिफ्रैक्शन विच हैपन्स ऑन every object. You can say there can be near 100% kind of transparent objects. जो opaque object होगा उसमें क्या होगा? Very clear. उसमें जो transmission है वो कट ऑफ हो गई या बहुत बेयर मिनिमम हुई, तभी वो ऑब्जेक्ट ओपेक हो गया. तो अगर किसी ग्लास मटेरियल को कहें, एक ग्लास मटेरियल लाइट को सबसे ज्यादा ट्रांसमिट करता है, एज आई सेड अर्लियर, वो पूरा 100% नहीं होता है, कहीं ना कहीं बाकी फिनोमिनास भी पार्टिसिपेट करते हैं. सो यू कैन से इट कैन बी 99.99 समथिंग % इफ इट इज अ वेरी गुड ट्रांसमिटर ऑफ एन ऑब्जेक्ट थ्रू द ग्लास, but there are other phenomena also which happen. और I के साथ हम इसको आगे correlate भी करेंगे. Another thing which my students you all have to get through revise out is the property of light, the laws of reflection and the laws of refraction. You have to understand these two things very clearly. The laws, because आँख में ये phenomena हमें understand करना है कि refraction कैसे होती है. Let us go into it a little more detail if you want to be revising it. First of all, law of reflection, there are two laws. The incident, the reflected and the normal lie in the same plane, first of all. And the second is the angle of incidence. अगर कोई लाइट किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ती है, वो रिफ्लेक्ट आउट होती है, तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के हमेशा इक्वल होता है. एंड प्लेन मिरर होगा इफ इट इज अ प्लेन मिरर, whenever there is a light which is reflected off through a mirror. Now whenever there is a refraction, it is transmission and refraction together. The second is the refraction. Refraction, as I earlier told you, light जब किसी मीडिया पे या ऑब्जेक्ट पे पड़ती है, उसमें से ट्रांसमिट होती है और बाहर निकलती है. दिस इज कॉल्ड emergent ray or the refracted ray. This is the incident ray. जितनी भी इनसाइड फिनोमिना है, सिंस इन दोनों मीडियाज में एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वेरिएशन हो जाती है. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मींस कितना वो डेंस मटेरियल है. अगर ये मीडिया डेंस है, ये लाइट है, तो जो बेंडिंग ओवर ऑफ द लाइट होगा वो एक डिफरेंट फिनोमिना से होगा. इट विल बी टूवर्ड्स और अवे. इसको थोड़ा सा और समझना जरूरी है, बिकॉज रिफ्रैक्शन हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिना है जब हम आई को कंसिडर करते हैं. सो एज द लाइट पासिस फ्रॉम वन मीडियम, लेट्स से ग्लास, एयर पे ग्लास या वाटर या किसी में से, द स्पीड ऑफ लाइट विल चेंज एंड दिस कॉजेज इट टू बेंड एंड बी रिफ्रैक्टेड. So the amount of refraction, ये कितना रिफ्रैक्ट हुई या कितना बेंड हुई, will depend upon the index of refraction. Index of refraction of the object through which it is passing. You all must have seen this. ये आपने देखा होगा कि जब भी किसी पानी में हम ऐसे पेंसिल डालें, तो वो पेंसिल हमें कटी हुई या टेढ़ी सी या बेंड होके दिखाई देती है. This is a simple phenomena to explain refraction में क्या हुआ. क्या ये पेंसिल घूम गई? नहीं. ये पेंसिल मुड़ी नहीं, ये बेंड नहीं की. जो हमने इसको विजुअलाइज किया, जो आंखों ने इसको देखा, वो इसकी बेंडिंग को देखा. राइट? दैट इज वाई हमें पेंसिल ऐसे लगा ये बेंड कर गई. नाउ बेंडिंग को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करने के लिए लेट अस गो थ्रू दिस सिंपल एग्जाम्पल हियर. सपोज एक कार है जो हवा में चल रही है और आगे उसको पानी या ग्लास सरफेस मिल जाता है. नाउ द कार इज गोइंग विद अ पर्टिकुलर स्पीड. जैसे ही आगे ग्लास या वाटर आ जाता है, व्हाट डू यू थिंक विल हैपन? क्या होगा? सिंपल लॉजिक, उसकी स्पीड स्लो हो जाएगी. राइट? और स्पीड स्लो होने से क्या, सिंपल द सेम फिनोमिना हैपन्स विद द लाइट. लाइट रे जो ट्रैवल कर रही है, आगे उसको एक दूसरा मीडिया मिल जाता है जिसकी अपना एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, जिसकी वजह से वो लाइट की स्पीड जो है या तो स्लो होगी या फास्ट हो जाएगी. सो अगर वो स्लो स्पीड की तरफ जाता है तो लाइट हमेशा नॉर्मल की तरफ बेंड करती है. नॉर्मल मैंने, ये एक लाइट है, इस पे आप एक जंक्शन पे परपेंडिकुलर बनाइए, तो जो स्पीड है उसकी स्लो होगी और स्लो होते होते वो नॉर्मल की तरफ भी बेंड करेगी. तो ये लाइट जो सीधी जानी चाहिए थी, अब बेंड होके नॉर्मल की तरफ जा रही है. राइट?
लेट्स गो बैक टू द कार अगेन. अगर यही कार किसी रेत या मिट्टी वाले रास्ते से चलते चलते सपोज एक स्मूथ हवा के रास्ते पे आ जाए, व्हाट विल हैपन? इसकी स्पीड बढ़ जाएगी, राइट? और सेकेंड थिंग, उसके अंदर वही फिनोमिना होगा. नॉर्मल अगर हम ड्रॉ करेंगे, अगर स्पीड लाइट की बढ़ जाती है तो वो उससे अवे बेंड करेगा. सो दिस इज व्हाट हैपन्स इन रिफ्रैक्शन. When it is slower speed, it bends towards the normal. When it is faster speed, it bends away from the normal. और वो fast speed पे जाएगा या slow speed पे जाएगा will depend upon the refractive index of the material. Sin I by sin R is equal to mu. Mu stands for the refractive index. Sin of the incident ray divided by the sin of the refractive ray gives you the refractive index. तो किसी भी मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करने के लिए अगर हम इस बेंडिंग को कैलकुलेट कर लेते हैं, हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मटेरियल का निकाल लेते हैं. तो डेफिनेटली एयर को जो हम लेते हैं उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम 1 लेते हैं. उससे कम वाले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में समझ लीजिए यूजुअली जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो उससे हमेशा हायर साइड पे ही रहता है किसी भी ऑब्जेक्ट का विच इज डेंसर देन द एयर. Now another thing, my friends, which students, which you have to get back to revising is the image formation. Convex lens में image focus पे हो, principal plane पे हो, curvature पे हो, radius पे हो, वो सब focal points आपको discuss करने हैं, revise करने हैं. Go back to your physics books. इस समय हम उसको पूरी तरह से फिजिक्स को डिस्कस नहीं करेंगे, सिंपल डेफिनेशंस को रिवाइज करते हैं. अगर ये एक कन्वेक्स लेंस है तो उस पे क्या होता है, लाइट पड़ती है, बेंड करती है और एक पॉइंट पे फोकस करती है. कन्वर्जेंट लेंस में ये होता है. डाइवर्जेंट लेंस जिसको कॉन्केव लेंस करते हैं उसमें रेज जो है डाइवर्ज आउट करते हैं. सो व्हाट इज एन ऑप्टिकल एक्सिस? ऑप्टिकल एक्सिस इज एक्सिस नॉर्मल टू बोथ साइड ऑफ द लेंस and light is not refracted along the optical axis. If you can see it, this is the red center line which is the optical axis. किसी भी लेंस में जहाँ से लाइट बेंड नहीं करती है, बिल्कुल स्ट्रेट पास आउट कर जाती है, there is no refraction, is called the optical axis of the light. फोकस किसे कहते हैं? जो पॉइंट जहाँ पे लाइट रेज आके मीट करती हैं, कन्वर्ज करती हैं, फोकस करती हैं, उसे कहा जाता है फोकस या फोकल पॉइंट. और फोकल लेंथ क्या होती है? डिस्टेंस ऑफ द फोकल पॉइंट फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस इज कॉल्ड द फोकल लेंथ. सो यू हैव टू बी वेरी थॉरो विद ऑल दीज टर्मिनोलॉजीज, बिकॉज आने वाले टाइम में जब भी आप आंख को पढ़ेंगे आप इसी चीज को रिवाइज करते रहेंगे. ये वर्ड्स आपके सामने आएंगे, फोकस, फोकल लेंथ, ऑप्टिकल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर. सो प्लीज गेट बैक टू दीज फिगर्स. दूसरी चीज, एक कन्वेक्स लेंस क्या करता है? कन्वेक्स लेंस का एक और फिनोमिना है कि वो ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई करता है, और दूसरा कॉन्केव लेंस इसका उल्टा होता है. कॉन्केव लेंस ऑब्जेक्ट को मिनिमाइज करता है. नाउ लेट अस गेट बैक टू आई इफ यू हैव रिवाइज्ड दिस. आई में सिंपल स्ट्रक्चर्स आप लोगों ने कुछ क्लासेस अब अटेंड कर ली. आई एक सिंपली लेंस, इसमें एक कन्वर्जिंग लेंस है, और फिनोमिना क्या होता है? कॉर्निया है विच इज ऑल्सो अ कन्वर्जिंग लेंस. रेज ऑफ लाइट आंख पे जाती हैं और रेटिना पे फोकस होती हैं. इट्स अ सिंपल कन्वेक्स लेंस फिनोमिना. पूरी की पूरी आंख को एक होमोसेंट्रिक सिस्टम या कन्वर्जिंग लेंस में कन्वर्ट कर देते हैं, जिसमें लाइट, मतलब जिस भी चीज को हम देखना चाहते हैं, वो जब तक इल्यूमिनेटेड सेकेंडरी या मेन सोर्स नहीं होगा उसमें से लाइट पास करेगी और फोकस करेगी, और वो फोकस फोविया पे फॉर्म होगा, तभी आई पे इमेज फॉर्म होगी. और इसकी लाइट को कंट्रोल करने के लिए प्यूपिल होता है, आइरिस है जो एक्सपैंड करता है और छोटा होता है, जिससे प्यूपिल फॉर्म होता है. इट कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट विच इज एंटरिंग. एक लेंस है जो कि सिंपल ग्लास लेंस की तरह फोकसिंग मटेरियल फॉर्म करता है, और रेटिना है जिसपे लाइट सेंसिटिव रॉड्स एंड कोन्स हैं, जहां पे इमेज प्रोजेक्ट होती है और इमेज के इम्पल्सेस ऑप्टिक नर्व से ब्रेन को जाते हैं. अगेन टू गो हेड विद दिस, आई को एक सिंपल कैमरा की तरह कंसिडर किया जा सकता है. यस,
कंसिडर किया जा सकता है, बट इट इज नॉट एज सिंपल एज दिस ह्यूमन कैमरा इज. आई इज सो कॉम्प्लेक्स. भगवान की बनाई हुई ये चीज इतना कॉम्प्लेक्स फिनोमिना है कि इसको अंडरस्टैंड करने के लिए आपको कहाँ से कहाँ तक नहीं पहुंचना पड़ेगा. पर यस माय डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर में आपको बेसिक्स बिल्कुल समझ आने चाहिए कि आई एक इमेज कैसे फॉर्म कर रही है. सो लेट अस गो विद द सिमिलैरिटीज विद द कैमरा हियर. सबसे पहले कैमरा एक सील्ड बॉक्स है, आंख भी ऐसे ही एक सील्ड बॉक्स है. इसमें एक लेंस सिस्टम है जो कि कन्वर्जिंग प्लस लेंस होता है, जो कि कन्वर्ज करता है लाइट को, इमेज को बनाता है. सेम वे आई के अंदर भी एक लेंस है जो कि इमेज को फॉर्म करता है. आई के अंदर दो कन्वर्जिंग लेंस फिनोमिना होते हैं, एक कॉर्निया मेन होता है और एक अंदर वाला लेंस होता है. लेंस कैमरा में लाइट को, शटर को आप जानते हैं छोटा या बड़ा किया जाता है. जब धूप तेज होती है तो इसमें शटर को कंस्ट्रिक्ट कर देते हैं. सेम वे प्यूपिल भी ऐसे ही ऑटोमेटिकली वर्क करता है. लाइट तेज होने पे आइरिस कंस्ट्रिक्ट करता है, प्यूपिल जो है छोटा हो जाता है. लाइट को, इंटेंसिटी को जो आंख तक पहुंचती है कम कर दिया जाता है या कंट्रोल करता है. अगर डिम लाइट होगी, प्यूपिल डायलेट कर जाएगा, ज्यादा लाइट की जरूरत है ताकि इमेज फॉर्म हो. सेम फिनोमिना इज गोइंग टू हैपन ऑन द आई. और यहाँ अगर हम कहते हैं कि कैमरा में फिल्म होती है, सेम वे रेटिना बिल्कुल कैमरा की फिल्म की तरह काम करता है. ये सब चीजें एक लेमैन को, पेशेंट को भी जब आप लोग बाद में डिस्कस करेंगे उसकी प्रॉब्लम्स को, उसकी डायग्नोसिस को, उसकी ट्रीटमेंट्स को, तो इस तरह से पेशेंट को समझाना कि कैटरैक्ट हो गया, वो लेंस की ओपेसिटी हो गई, रेटिना खराब हो गया, पर्दे में डिफेक्ट हो गया. दीज आर द थिंग्स जो कि आप इससे कोरिलेट करके भी पेशेंट को भी समझा सकते हैं. So what are the special features? The eye is an amazing complicated optical device. बिल्कुल यही बात बार बार दोहरानी है कि आंख इतनी आसान चीज नहीं है. इसमें एक इमेज फॉर्म होती है. सपोज लेट अस से ऑब्जेक्ट ट्वाइस द फोकल लेंथ पे 2f पोजीशन पे खड़ा हुआ है. इसकी इमेज फॉर्म होगी रियल, इन्वर्टेड एंड स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट. और इसकी इमेज हमेशा, अगर हम कन्वेक्स लेंस के डायग्राम्स को याद करें, इज फॉर्म्ड ऑन द ऑपोजिट साइड ऑन द फोकल पॉइंट and the retina is supposed to be, or the fovea is supposed to be the focal point. But at the same time, अगर हम convex lens के डायग्राम को करें, एक इरेक्ट इमेज का डायग्राम जो बनता है वो रियल इमेज और इन्वर्टेड बनता है. क्या हम सब चीजें उल्टी देखते हैं? Do we see everything upside down? No, we do not. The brain will actually flip the things around. So ultimately brain इसमें काम करता है जो कि चीजों को वापस upright position पे लेके आता है. Second very interesting phenomena of the eye is the autofocus system, जिसको हम accommodation कहते हैं. You know, it can quickly focus. It is so much small. milliseconds में एक आंख का लेंस जो है फोकस करके एक इतने दूर सा ऑब्जेक्ट जो पास है दोनों को फोकस कर सकता है. अपने आप कोशिश करके देखिए, एकदम बहुत दूर देखिए, फिर सडनली अपने हाथ में सामने पड़ी, बिल्कुल चाहे 20 सेंटीमीटर पास पड़ी चीज को देखिए. इमीडिएटली यहाँ से इमेज भी रेटिना पे फोकस हो गई, पास आते ही इमेज भी रेटिना पे फोकस हो गई. नाउ हाउ डज दैट हैपन? ये एक लेंस जो हमारी आंख के अंदर है, इसमें एक मैजिकल फिनोमिना है जिसको कहते हैं एकोमोडेशन, विच कैन टेक इन द इमेज फ्रॉम इंफिनिटी टू द नियर पॉइंट. So let us now consider eye as an optical system. पूरा एक optical system है जिसकी एक positive power है which is around 58 diopters. कुछ बुक्स में आपको ये फिगर 60 diopters भी लिखी हुई मिलेगी, but you can, it is said to be about 58 diopter. हर आंख की अपनी पॉजिटिव पावर होती है. सो दैट इज वाई एक नॉर्मल फिगर को अबाउट 58 डायोप्टर्स कहा जाता है.
आई कैन बी 57 इन सर्टेन केसेस, आई कैन बी 60, वो डिपेंड करता है उसकी रिफ्रैक्टिव एरर कंडीशन पे. So the overall eye is an optical system which has a positive power of 58 diopters. तो अगर स्टूडेंट 55 या 58 या 60 एग्जाम Yes. चाहते तो इट इज नहीं सर, अगर क्वेश्चन आंख के लिए नॉर्मल आई के लिए आए तो उसमें आंसर अबाउट 58 डायोप्टर्स लिखा जाएगा. दैट वर्ड अबाउट इज इम्पोर्टेंट. कुछ बुक्स में 60 डायोप्टर्स करके भी जनरलाइज किया है, बट अगर आप उसको 55 लिख दें, 57 लिख दें, नहीं, ऐसा नहीं माना जाएगा. क्योंकि वो क्यों नहीं माना जाएगा आगे जब हम अभी आज ही रिफ्रैक्टिव एरर्स डिस्कस करेंगे उसके बारे में, तब हम फिर से डिस्कस करेंगे. यस राजगिरी, आई होप इट इज अभिषेक. रांची, हाँ रांची बोलिए. मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग. पूछिए अपना सवाल. हेलो. हाँ पूछिए अपना सवाल. Yes. तेज करो ना यार, हम भी सुनेंगे. Yes, हेलो. बेटा, go ahead. हाँ बोलिए बोलिए. सर एकोमोडेशन और कन्वर्जेंस में क्या अंतर है और एकोमोडेशन क्या है सर? एकोमोडेशन और कन्वर्जेंस में अभी ये बता रहे हैं. अभी हम आपको पूरा एकोमोडेशन और कन्वर्जेंस के बारे में बताएंगे. थोड़ा सा आप धीरज रखिए, ये भी बताएंगे. ओके बेटा, जस्ट टू टेल यू, आने वाली स्लाइड्स में थोड़ा सा एकोमोडेशन को और बताऊंगी. हेलो. आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या बच्चे? अभिषेक. हैं? अभिषेक. 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 अच्छा अभिषेक. ठीक है. एक्चुअली ये क्वेश्चन जो है हम लोग असाइनमेंट में भी पूछा गया था. हाँ हाँ. That what is accommodation? Sometimes when we goes in through the classes, we find that the teacher told us that convergence is the part of accommodation. वो But बताएं. we couldn't distinguish between them. So we want to get some details about it. Oh, And definitely. I will be very thankful to you if you would give us some details. No, definitely Thank you will. very much. Definitely will explain you the what is difference between convergence and accommodation. बेटा थोड़ा सा टाइम दो, आने वाली अगली स्लाइड्स में मैं आपको कुछ एकोमोडेशन की डिटेल और दूंगी. हालांकि एकोमोडेशन पूरा एक 50-60 स्लाइड का चैप्टर बनता है जिसको हम बहुत अच्छी तरह से आने वाली क्लासेस में भी पढ़ेंगे, बट कुछ स्लाइड्स आगे जो हैं आपको एकोमोडेशन को और समझाएंगी. थोड़ा सा पेशेंस रखो. ओके, सो वी वर ऑन द ऑप्टिकल सिस्टम ऑफ द आई विद द मेन पावर, पॉजिटिव पावर इज 58 डायोप्टर्स. आई के दो मेन रिफ्रैक्टिव एलिमेंट्स होते हैं. मेन इज कॉर्निया and the second is the lens. The cornea bulges in front of the eyeball, and because of its first surface is in the contact with the air, it bears most of the power, again about 45 diopters. बच्चे इन फिगर्स को थोड़ा सा कहीं ना कहीं याद रखो कि about एक जरूर लगाना है, क्योंकि नॉर्मल वेरिएशन में भी 43 को भी नॉर्मल माना जा सकता है, 44 को भी नॉर्मल माना जा सकता है. इसीलिए बुक्स में उसको अबाउट करके लिखा जाता है. अगर हम आंख को पूरा सिस्टम 60 डायोप्टर में कंसिडर करें तो कॉर्निया को 45 और लेंस को 15 से 17 डायोप्टर्स तक कन्वर्जेंस की प्रॉपर्टी होती है. बट ये तो मेन रिफ्रैक्टिव एलिमेंट्स हैं. आंख में पूरा एक सिस्टम है, विट्रस है, एक्वस है, और पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द कॉर्निया है, पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द लेंस है, जो सब कन्वर्जेंस का एक होमोसेंट्रिक सिस्टम बनाएंगे, जिसको हम आगे समझेंगे. जिसकी वजह से हम एक पॉइंट्स में जो फिगर्स हैं उनको कंसिडर नहीं करते हैं, हम एक जनरल फिगर को कंसिडर करते हैं, जिसको कहते हैं कि कॉर्निया इज डूइंग द मेजर पार्ट. अगर आई को मैं कहूँ 60 डायोप्टर्स का एक लेंस है तो कॉर्निया ऑलमोस्ट 2/3 पार्ट ऑफ द कन्वर्जेंस जो है कॉर्निया करता है. हाँ जयपुर आइए. हेलो. हाँ बोलिए. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग. आई एम शरद. शरद. यस सर. हाँ बोलो शरद, क्या सवाल है आपका? सर अगर सर कॉर्निया, अगर टोटल आई का डायोप्टर पावर अबाउट 60 डायोप्टर माना जाए और कॉर्निया का 20 डायोप्टर और लेंस का 40 डायोप्टर, तो क्या सही होगा? नहीं शरद, उल्टा बोल गए. और अगर आई को हम टोटल 60 लेते हैं तो उसमें एवरेज फिगर्स कुछ बुक्स में 43 कॉर्निया को देती हैं और 17 लेंस को देती हैं. और आप उसको अगर जनरल करके लिखेंगे तो अबाउट 45 टू द कॉर्निया एंड अबाउट 15 टू द लेंस लिखेंगे.
Is that Ma'am, clear? about 40 diopter और about 20 diopter नहीं 60 पूरा है, ठीक हो गया नहीं? नहीं बिल्कुल गलत. अबाउट 40 and 20 नहीं कहा जाएगा, एटलीस्ट 45 कॉर्निया के लिए है. 40 को हम लेसर साइड पे ले जाते हैं 45 कॉर्निया के लिए है. और अबाउट 15 फॉर द लेंस. ठीक है शरद, चलिए. अगर हमने शुरू में डिस्कशन किया था कि रेटिना जो है फोविया इज वेयर द इमेज इज फॉर्म्ड, ये फोविया जो है एवरेज फिगर्स 24 मिलीमीटर, किसी बुक में 22 मिलीमीटर, किसी में 23 मिलीमीटर. यस, बट आप इन फिगर्स को इसलिए वेरिएशन आएगा क्योंकि ह्यूमन पॉपुलेशन में 24 वाला भी नॉर्मल है, 23 वाला भी नॉर्मल है. वो कैसे नॉर्मल है? जब हम रिफ्रैक्टिव एरर्स को अंडरस्टैंड करेंगे, वो पूरी फिगर्स को, हम नॉर्मल फिगर्स को क्यों किस में वेरिएशंस है इन फिगर्स में, ये अंडरस्टैंड करेंगे. बट जनरली स्पीकिंग 22 से लेके 24 मिलीमीटर पे एक इमेज फॉर्म होती है जहां पे रेटिना मिलता है, विच इज वेयर द यू कैन से फिल्म ऑफ द कैमरा इज प्लेस्ड. द पावर ऑफ द लेंस इज नॉट फिक्स्ड. अगेन एकोमोडेशन के फिनोमिना की वजह से ये वेरिएशन है. किसी बुक में 15, 17, किसी आई में 16, किसी में 17 डायोप्टर्स. सो इट ऑल वेरीज, डिपेंड करता है कि जब एकोमोडेशन होती है तो लेंस की कन्वर्जिंग पावर बढ़ जाती है. जब एकोमोडेशन फिनोमिना नहीं होता है, लेंस रिलैक्स होता है, तो उसकी डायोप्ट्रिक पावर डिफरेंट होती है. बट यू विल नाउ अंडरस्टैंड इट ग्रेजुअली कि ये फिगर्स की वेरिएशन को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे. Pupil of the eye is located 3 millimeter behind the front vertex of the cornea. Its diameter ranges from 2 to 8 millimeters and it is influenced by lighting conditions. ये तो आप जानते ही हैं, लाइट ब्राइट होगी, प्यूपिल छोटा होगा, लाइट कम होगी, बड़ा होगा. एज से भी प्यूपिल वेरी करता है. एज जैसे जैसे बुजुर्गों में आप देखोगे, एज के साथ प्यूपिल के साइज छोटा हो जाता है. कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जो कि प्यूपिल को डायलेट करती हैं, कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जो प्यूपिल को कंस्ट्रिक्ट करती हैं. हेल्थ स्टेटस में भी प्यूपिल की वेरिएशन होती है. ओके, सो जनरली स्पीकिंग एवरेज फिगर्स हमारे 3 से 4 मिलीमीटर या 5 मिलीमीटर नॉर्मल प्यूपिल साइजेस होते हैं. इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द आई एज एन ऑप्टिकल सिस्टम, आई के डिफरेंट कंपोनेंट्स में अब आप यहाँ पे कंपैरिजन फिगर्स देखो. एंड स्टूडेंट्स, प्लीज learn these refractive index figures. These are important because you have to be thorough. इसको थर्ड डेसिमल प्लेस तक जहां तक हो सके याद करो. टीयर फिल्म की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है 1.35. अगर हम एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 मांगते हैं तो टीयर इज 1.35, कॉर्निया इज 1.376, एक्वस इज 1.336, लेंस इज 1.38, the vitreous is 1.33. So you can see here the index of refraction of the components are fairly similar. मतलब अगर हम कॉर्निया को देखें 1.37 और लेंस 1.38, लेंस सबसे डेंस होता है, पार्डन मी प्लीज, बट इन दोनों की ऑलमोस्ट सेम है. और जो विट्रस और एक्वस है विच इज लेस डेंस, बट जनरली स्पीकिंग इन सब फिगर्स को हम एक स्टैंडर्ड फिगर में कन्वर्ट करते हैं और इनमें हम आंख को एक सिमिलर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में मान सकते हैं, जस्ट टू अंडरस्टैंड कि आई फोकस कैसे होती है. फोकसिंग अब फर्दर इमेज की कैसे होती है. सबसे पहले कॉर्निया जो है लाइट को रिफ्रैक्ट करती है. दैट मीन्स व्हाट इज कॉर्निया? कॉर्निया इज अ कॉन्वेक्स लेंस सरफेस where the light falls, और कन्वेक्स सरफेस क्या करता है? हमेशा कन्वर्ज करता है, रेज को फोकस की तरफ डालता है. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द कॉर्निया इज 1.36 और यू कैन से नियर 1.33. इसको आगे फिर डिस्कस करेंगे कि why 1.33 इज रिटन. इस चीज से आप एक बात और अंडरस्टैंड करो, व्हेन यू ओपन योर आईज अंडर वाटर तब आपको इतना अच्छा दिखाई नहीं देता है. दिस इज बिकॉज जो पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कॉर्निया के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से मिसमैच कर जाता है. और यही चीज जब आप गॉगल्स पहन लेते हो और पानी के अंदर देखने की कोशिश करते हो,
कॉर्निया का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, जो वापस एयर के साथ इंटरफेस में मैच करता है, वो नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है एंड देन इट कैन बी सीन क्लियर. सो इसी फिनोमिना पे बेस्ड होता है कॉर्निया का फिनोमिना कि कॉर्निया या आंख को देखने के लिए आगे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है एयर का होना चाहिए. यू कैन नॉट सी वेरी क्लियर इफ दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज नॉट मैचिंग दिस कॉर्निया. So once light enters, what happens? कॉर्निया में रिफ्रैक्शन होती है, मतलब बेंडिंग होती है, बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल होती है क्योंकि इट इज अ डेंसर मीडियम देन द एयर. कॉर्निया की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हायर है, इट बेंड्स और बेंडिंग होने से फर्दर रेज लेंस पे पहुंचती हैं. यहाँ पे भी बेंडिंग होती है और बेंडिंग होते होते इमेज जो है फोकल लेंथ ऑफ द आई जो कि रेटिना पे है वहाँ फोकस हो जाती है. So in human eye, the image always needs to be formed on the retina. और अगर ऐसा नहीं होता है तो हम आगे डिस्कस करेंगे. मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया इसी चीज पे बेस्ड है जब ये इमेज रेटिना पे फॉर्म नहीं होती है. Another thing students, the distance between the lens and the retina is about 17 millimeters. यहाँ से लेके रेटिना 17 millimeters होती है और लेंस की फोकल लेंथ इसी को डिस्कस करते हैं. इसी से हम आई की डायोप्ट्रिक पावर कैलकुलेट करते हैं. तभी हम ये कहते हैं कि कहीं पे 43, कहीं पे 44 भी नॉर्मल है, 45 भी नॉर्मल है. आई की टोटल पावर भी जो है 60 भी नॉर्मल है, 59 भी नॉर्मल है, किसी के लिए 61 भी नॉर्मल है. अगर ये टोटल आई इसमें कॉर्निया लेंस, लेट अस से कॉर्निया 45 डायोप्टर्स का है, लेंस 17 डायोप्टर का है, तो टोटल पावर आंख की बन गई लगभग 62. अगर इमेज फिर भी रेटिना पे बनती है तो इस आंख के लिए 62 डायोप्टर एक नॉर्मल फिगर हो जाएगी. सो दैट वुड आंसर माय क्वेश्चन. किसी ने ये पूछा कि अगर मैं 40 और 15 लिख दूं तो वो गलत होगा. नहीं, वो गलत नहीं होगा प्रोवाइडेड उस आंख की डायोप्ट्रिक पावर जो 55 आप लिख रहे हैं उसमें इमेज रेटिना पे फॉर्म हो. बट स्टूडेंट्स, अगर ये जनरल क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द डायोप्ट्रिक पावर ऑफ द कॉर्निया, व्हाट इज द डायोप्ट्रिक पावर ऑफ द लेंस, प्लीज इतनी वेरिएशंस नहीं लिखिए. गो टू द फिगर्स दैट आई एम टेलिंग यू. इट इज अबाउट 45 फॉर द कॉर्निया. द लेंस वेरीज बिटवीन 15 to 17 डायोप्टर्स. ओके, इज दैट क्लियर? 3 points that we will discuss now. बुक्स में पढ़ते पढ़ते ऑप्टिक्स आप कुछ पॉइंट्स को याद करेंगे. सबसे पहले एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट दिखाई देगा जिसका नाम होता है नियर पॉइंट. नियर पॉइंट क्या चीज है? नियर पॉइंट वो द क्लोजेस्ट पॉइंट ऑन विच द आई कैन फोकस. अब इस चीज को समझने के लिए आप सब लोग सामने दूर देखिए और फिर अपनी पेन हाथ में पकड़ के उसको आंख के पास लेते जाइए. पेन को आंख के पास ले जाते आप देखेंगे एक पॉइंट ऐसा आएगा जब आपको पेन की नोक या टिप जो है क्लियर नहीं दिखाई देगी. ये वो पॉइंट है, क्लोजेस्ट पॉइंट, जहां पे आपको आई इमेज फॉर्म करती है रेटिना पे तो क्लियर दिखाई देता है. बट बच्चों, ये वो पॉइंट एक्चुअल नियर पॉइंट नहीं है क्योंकि इस समय आप एकोमोडेशन को रोल प्ले करते हैं तभी इमेज रेटिना पे फॉर्म होती है. हाँ भोपाल, पूछिए. हाँ सर, ये क्वेश्चन ये पूछना था कि कॉर्निया की एंटीरियर सरफेस जो है वो कॉन्वेक्स होती है और पोस्टीरियर सरफेस जो है वो कॉन्केव होती है. तो पोस्टीरियर सरफेस का डायोप्ट्रिक पावर कितना होगा? आपका नाम क्या? एंटीरियर सरफेस का कितना होगा? आपका नाम क्या है? कन्हैया लाल मेहर सर. कन्हैया लाल. ओके बेटे, एंटीरियर सरफेस का रेडियस ऑफ डायोप्ट्रिक पावर में अगर कहेंगे तो 43 होता है. रेडियस ऑफ कर्वेचर उसका फिगर्स लिखी होती है. 7.8 एंटीरियर कॉर्निया का फ्रंट सरफेस होता है और बैक कर्वेचर जो है उसका नेगेटिव पॉइंट में चला जाता है एंड डायोप्ट्रिक लेंथ उसको न्यूट्रलाइज करता है. दैट इज अराउंड 7.6. एंटीरियर लेंस 10 डायोप्टर कर्वेचर होता है और पोस्टीरियर कर्वेचर ऑफ द लेंस इज 6 डायोप्टर्स. और ये लेंस की फिगर्स जो डायोप्ट्रिक पावर है ये
accommodative state में और non-accommodative state में दोनों में बदल जाती हैं. You will have these tables written in the books. We can even discuss it when we go on to the future things. तो कॉर्निया का फ्रंट सरफेस कन्वेक्स है. दूसरा एक मेनिस्कस लेंस बैक में फॉर्म करता है जो कि नेगेटिव लेंस फॉर्म करता है, बट उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर भी 7.6 है मिलीमीटर्स में. इसको डायोप्टर्स में भी कन्वर्ट किया जा सकता है. सेम वे एंटीरियर लेंस इज 10 millimeter in curvature, the posterior lens is 6 millimeters when it is for distance. और यही जब लेंस का near curvature है वो converge करने पे एंटीरियर और पोस्टीरियर फुल कन्वर्जेंस एकोमोडेशन में 5.3 मिलीमीटर हो जाता है. Now these are figures. If I had a table, you would have noted them down in a better way. Maybe we can show. We have it in our module which is coming up, which will give them. And when we come up with the next lectures, you will see that this is your first year level. What we want you to understand is the terminology with the eye. एक point को आप अभी डिटेल में ले जाएंगे. अगले साल भी आप यही ऑप्टिक्स पढ़ेंगे, यही आंख को पढ़ेंगे, तब आप इंटीरियर सरफेस, पोस्टीरियर सरफेस डिटेल में अच्छी तरह समझेंगे कि इमेज. आज तो हम आई को एक जनरल कन्वेक्स लेंस की तरह डील कर रहे हैं, कैमरा की तरह ऑपरेशन में समझा रहे हैं. तब आप एक तरह से रे डायग्राम में समझेंगे कि कन्वर्ज किया, फिर डाइवर्ज किया, फिर आगे ऑप्टिक्स कैसे पार्टिसिपेट की. बच्चों, उसको अभी कंफ्यूज नहीं करो, फर्स्ट ग्रॉसली समझने की कोशिश करो, बिकॉज आप इंटीरियर पोस्टीरियर सरफेसों के चक्कर में फिगर्स याद करो. सेकेंड ईयर अगेन यू विल कम ऑन टू दिस स्टेप, और यही ऑप्टिक्स आपकी लास्ट तक आपको डिटेल में ले जाती रहेगी. ये आप समझ लीजिए कि ये जो हम आज पढ़ा रहे हैं, बेसिक्स पढ़ा रहे हैं, दिस विल फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ योर फ्यूचर कोर्स. ये चीजें जो जैसे डॉक्टर मोनिका ने बताया, यही चीजें जो है आगे भी रिपीट होंगी इन सम और अदर फॉर्म. ये जो है आपका एक फाउंडेशन बेसिस बना रही हैं, जिसके ऊपर आगे के सारे जितने भी प्रिंसिपल, जितने भी थ्योरीज हैं, वो इसके ऊपर वो मैटर करेंगी. और उसी के तो आप अभी एक जो इसको समझाने की कोशिश की जा रही है, आप उसको समझ लीजिए. बाकी जो फिगर्स हैं उसको डिटेल में कैसे करना है, क्योंकि यही चीजें बार बार रिपीट होंगी. एक प्रोसेस है, रिफ्लेक्शन है, उसके आगे उसको डिटेल्स में सेकंड ईयर में और डिटेल्स में पढ़ेंगे, थर्ड ईयर में और डिटेल्स में पढ़ेंगे. तो वो सब चीजें, तो अभी आप जो है बेसिक चीजों को समझने की कोशिश करिए. इन जो जैसे कि मैडम ने बताया कि आप डिफिकल्ट चीजों में अभी जाने की कोशिश मत करिए. मे बी जब आने वाले सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में जब ऐसी चीजें होंगी, हम खुद भी उसको डिटेल में बताने की कोशिश करेंगे. और अगर आपके कुछ सवाल होंगे तो उनको भी हम क्वेश्चन आंसर करने की कोशिश. माय बेसिक पर्पस इज, आज जब आप किताब खोलनी शुरू करें, एटलीस्ट आपको वो नाम जाने पहचाने लगने शुरू होने चाहिए. टुडे इज माय फर्स्ट क्लास ऑन ऑप्टिक्स. और ऑप्टिक्स इट इज एक तरह से ये बताना कि कल को आप किताब खोलो तो आपको समझ आने लगे कि कॉर्निया ने क्या किया और लेंस ने क्या किया. एकदम एक साथ पढ़ाने में तो एक ही दिन में कॉर्निया पढ़ाते पढ़ाते ही रह जाऊंगे. सो लेट मी जस्ट गो टू दी ओवरव्यू, ताकि आप कल को जब बुक खोलें आपको ये समझ आने लगे. एंड मैं अपने स्टूडेंट्स को यूजुअली ऐसे ही शुरू करवाती हूँ. आई होप दैट विल बी इन अ बेटर वे, बिकॉज ऑप्टिक्स एक ऑप्टोमेट्री का मेजर सब्जेक्ट है. उसको यहीं पे पूरी तरह से समझने के लिए आपको कुछ टाइम और चाहिए, और ग्रेजुअली कुछ धीरज रखना पड़ेगा. तो हम अब थोड़ा धीरज रखेंगे. अभी हम ब्रेक करेंगे 15 मिनट के लिए, और हम जब वापस आएंगे 12 बजे तो इसको फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे. इस दौरान अगर आपके कोई सवाल हो तो आप उनको फैक्स कर सकते हैं, या और भी कोई क्वेरीज हो तो आप अपना नोट करके रख लीजिए. और जब हम वापस ब्रेक के बाद आएंगे, आपकी जितने भी सवाल हैं और जितनी और क्वेरीज हैं उनका Thank you so much.